جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی کلاس کا ٹائم تو اوور ہے لیکن انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں. میرے پاس 10 منٹ ہیں آپ کے 1:30 بجے تک نا, ہم اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی اچھا 10 منٹ اور کر لیتے ہیں. ٹھیک اچھا بک شیئر کرتے ہیں پھر دوبارہ سے. اگر میں ایک ہی اس کو گو میں کروں گی نا آپ کی کلاس بہت لمبی ہو جائے گی پھر, اس لیے میں 3 پارٹس میں کر دیتی ہوں یا 2 پارٹس میں. اچھا جی, اب یہاں پہ ہم پڑھے تھے من خرج من الفصلی. من کا مطلب who left from the class, who left from the class. تو کلاس سے کون گیا؟ جواب دینا ضروری نہیں ہے, بس کا ترجمہ کر لیں. کون مدرس المدرس خرج من الفصل. یہاں پہ من کی جگہ نام لگانا ضروری ہے. آپ ہوا نہیں لگا سکتے, ہوا خرج من الفصل یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ من کا جواب دینا ضروری ہے. من ربو کا, آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ اللہ کہیں گی نا, ہوا تو نہیں کہیں گی نا. اللہ کا نام لینا پڑے گا. اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ربونا, من ربو. تو من کا جواب دینا ہے. تو یہاں پر آپ المدرسو لکھیں گی مدرسو. را کے اوپر تشدید ہے, تشدید کے نیچے کسرہ ہے, مدرسو. اب خرجہ اس کی جگہ آپ نے المدرسو لکھ لیا, خرجہ من الفصل. اب خرجہ لکھ لیں آپ آگے, خرجہ من الفصل. تو اس طرح لکھ سکتے ہیں, یا پھر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں خرج المدرسو. اس کو بعد میں لے آئیں, خرجہ کو پہلے لے آئیں. خرجہ کو پہلے لائیں گی تو فعل شروع میں آ جائے گا, تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر اس طرح لکھیں گی من کا جواب دیتے ہوئے المدرسو خرج من الفصل, تو جملہ اسمیہ بنے گا کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. المدرسو اسم نون ہے. اگر مدرس پہلے لائیں گی تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اگر خرجہ پہلے لائیں گی تو فعل پہلے آ جائے گا, فعلیہ ہو جائے گا. اگر پلے پڑ گئی کوئی بات تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آئیں گے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ خرجت طالب من المدرستی, تو یہ کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ کی اسمیہ ہے. دیکھیں کس سے شروع ہو رہا ہے؟ تو فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ ہے. اب یہاں پہ یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ناؤن سے. تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا. انگلش میں کہتے ہیں نومینل سینٹینس, اور یہ وربل سینٹینس, ورب سے شروع ہو رہا ہے. تو انگلش جس کو سمجھ آتی ہے وہ انگلش میں بھی یاد کر لیں. خرجت طالب من المدرستی, تو خرجہ فعل ہو جائے گا. الطالب کیا بنے گا اس کا؟ فعل کے ساتھ اور کیا چاہیے؟ فاعل. اور اس لیے فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں پر آپ کا پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے, خرجہ الطالب من المدرستی. اب من حرف جر آ گیا تو اس نے زیر دے دی. من المدرسۃ نہیں کہہ سکتے, من المدرستی کہیں گے, حرف جر ہے. تو اسٹوڈنٹ نکلا کہاں سے؟ اسکول سے. بس ذهب الى السوق, اور کہاں گیا؟ ذهب کے ساتھ دیکھیں الا آ رہا ہے, اور خرجہ کے ساتھ کیا آیا ہے؟ من آیا ہے. خرجہ کسی چیز کے اندر سے نکلا جاتا ہے اور کسی چیز کی طرف جایا جاتا ہے, تو جانے کے لیے الا کا حرف جر ذهب کے ساتھ الا یوز ہوگا. ذهب الى السوق, تو الا کی وجہ سے نون کے نیچے زیر آ رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد خدیجہ تو من الصینی, خدیجہ تو ہے وہ چائنا سے ہے. وہ خالد من الیابانی, خالد کہاں سے ہے؟ جاپان سے ہے. یہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں. 2 جملے آ رہے ہیں یہاں پہ, خالد سے شروع ہو رہا ہے یہ والا جملہ, اور خدیجہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ دونوں جملے کون سے ہیں؟ اسمیہ ہیں. بیچ میں واو آیا ہے. واو جو ہے وہ اور کے لیے, اور کے معنی میں. خدیجہ جو ہے وہ چائنا سے ہے اور خالد جاپان سے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آ جائے. نمبر 4 کر لیتے ہیں ہم جلدی سے اس کو. آ جائیے. دعا فی الفراع فیما یلی حرف جری مناسباً یا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. Fill in the following sentence with the suitable prepositions. من في على الكتاب على المكتب. Good. ذهب حامد. سیکنڈ یہ والا ہے نا. الطالب الطالب في الفصل. فی الفصل.
ذهب حامد من إلى الجامعة. इला आएगा, इला क्यों आया कि पीछे ज़हबा आया है. ذهب, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आगे खरजा, خرج المدير من المدرسة. हाँ निकला किसी जगह से जाता है, से का मानी आएगा मिनल मदरसा. ये छोटी छोटी बातें अगर इनको आप दोहराएंगे ना सबक तो आपको बहुत अजबर हो जाएंगे. ज़हबा मोहम्मद, ज़हबा के साथ क्या आएगा? ذهب के साथ इला आएगा. इला आएगा. ذهب محمد إلى الصين من اليابان. मिनल याबानी, जापान से, ठीक है ना, चाइना की तरफ गया. मोहम्मद गया चाइना की तरफ जापान से, यानी पहले वो जापान गया और फिर वो चाइना गया. ठीक है ना. तो उस्ताद जी अगर ये जुमला ऐसे हो जाता ज़हाबा मुहम्मदन मिनल याबानी इला सीन तो ये गलत होगा. ज़हाबा मोहम्मदुन आपने क्या लगाया यहाँ पे? मिनल याबानी इला सीनी, तो ये गलत हो जाएगा क्या? मिनस सीनी इलल याबानी, तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे. लेकिन जब एक जुमले में दोनों यूज हो रहे हैं तो फिर आप उसको इधर से उधर गया या उधर से इधर गया आप कर सकते हैं ना. लेकिन जब एक ही जुमला होगा तो फिर उसमें आपको सही वाला लगाना है. तो मैंने आपको इला क्यों लगाया, क्योंकि मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, मैंने बताया ज़हाबा के साथ इला आएगा हमेशा, कुरान मजीद में भी देखें. और यहाँ पर आपका मिनल याबानी आएगा. यहाँ पे असल में खरजा है ना, तो खरजा आया नहीं है. खरजा इन्होंने लिखा नहीं, जरूरत नहीं थी लिखने की. खरजा मिनल याबान. अच्छा, तो बहरहाल जो भी है, आप इसमें चूंकि खरजा आया नहीं है तो इसलिए आप इसको मिन को यहाँ भी लगा सकती हैं, इला को आप यहाँ भी लगा सकती हैं. लेकिन जब आपका खरजा आ जाता है यहाँ पे तो फिर आप नहीं कर सकती थी. अगर यहाँ पे खरजा आ जाता तो फिर आपको यहाँ पे लाजम आपको क्या लिखना था, मिन लिखना था, और यहाँ पर आपको ज़हाबा के साथ इला लिखना था. लेकिन चूंकि खरजा आया नहीं तो अब आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं कि यहाँ से वहां गया या वहां से यहाँ गया. लेकिन उस्तादा जी शुरू में तो ज़हाबा आया है ना, ज़हाबा मोहम्मद, तो फिर हम इला लगाएंगे ना. हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, आप उसी को पकड़े ना, आप दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट को. नहीं, अभी मुझे खुद भी कंफ्यूजन है ना इस सेंटेंस में. हाँ, तो आपको अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे खरजा आता तो लाजम आपको यहाँ पे मिन लिखना पड़ता. ठीक है जी. लेकिन खरजा आया ही नहीं है तो फिर आप क्या कर सकती हैं, यहाँ मिन लिख सकती हैं और यहाँ इला लिख सकती हैं. यहाँ मिन लिख सकती हैं या इला, यानी वो चाइना से, यानी आप क्या कहते हैं, ज़हाबा मोहम्मदुन मिनस सीनी. आप मिनस सीनी लिखे यहाँ पे कि वो चाइना से गया. कहाँ गया? जापान गया. इला याबानी कर दें. ठीक है. तो लेकिन मैंने इसलिए आपको ये वाला जुमला नहीं बताया, मेरे ज़हन में भी था, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग कंफ्यूज होंगे. जो रूल मैं आपको बता रही हूँ उस रूल को ज़हन में रखें कि ज़हाबा के साथ आपने क्या लगाना है, वो आपने लाजम आपका इला लगेगा यहाँ पे. अगर खरजा यहाँ आ जाता तो फिर तो मिन लगना ही लगना था यहाँ पे, लेकिन खरजा नहीं आया तो फिर आप अभी यहाँ पर मिन लगा सकती हैं, यहाँ पे ला लगा सकती हैं. चलिए दोबारा सुन लीजिएगा जिसको समझ नहीं आई. बाकी ये वर्ड हमने नए सीखे, इनको कौन पढ़ेगा, जल्दी से पढ़ लें. कोई उरूज आप पढ़ लें, सामने आप ही कोशिश किया करें माइक लेने की, सब जंप करने की कोशिश किया करें. अल-कलमातुल जदीदातु. कलिमातु लाम के नीचे जेर है सिस्टर. अल-कलिमातुल जदीदातु. अल-मदरसातु मदरसा. स्कूल. मदरसा. अल मदरसा, मदरसती. ठीक है, इसके ऊपर ज़बर है. ये मुदरिस के ऊपर तशदीद के नीचे जेर होती है, मदरसा पे तशदीद के ऊपर ज़बर होती है. ठीक है. अल मदरसतु. आगे अल फसली. अच्छा देखिए, आप इन सब के ऊपर एक पेश आ रही है, पेश आ रही है. क्यों पेश आ रही है सब पे? अलिफ लाम की वजह से. वो तो आ ही रही है ना, अलिफ लाम होता तो दो पेश आ जाते, लेकिन पेश ही क्यों आ रही है? क्योंकि ये डेफिनेट है ना.
इसके डेफिनेट नाउन पीछे कुछ नहीं है सिस्टर, पीछे कोई हाँ, वर्ड हाँ। नहीं है, बिहाइंड क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, हाँ वो दीने फितरत पे है अभी, उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला पीछे से अभी। ठीक है, तो जी। समझ आई मेरी बात? हाँ कि जी, उस- अगर पीछे कुछ होता तो फिर आगे मतलब हाँ, फिर उस पे असर भी होता ना। हम्म, हाँ, पीछे कुछ नहीं है, सबके पीछे कुछ नहीं है। अगर पीछे लगाती जाएंगी तो आप लगाती जाए बेशक, यहाँ पे ला लगा दें, मिन लगा दें, कुछ भी लगा दें, जेर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? चले अभी ना लगाएं, अभी पढ़ते जाएं आप। अलल फस्ल, हर्फ जर ना लगाएं मेरी बहन, ऐसी पढ़े। अल-फस्लु, क्लासरूम। अल-फस्लु, अलल, अल-हमामु। अलल क्यों लगा रही हैं? जब अलल लगा देंगी तो फिर हमामू नहीं होगा, फिर जेर आएगी, अलल हमामी हो जाएगा फिर। तो या तो लगाए नहीं और या फिर लगाए तो सही करके पढ़े, अल-हमामु, अल-हमाम। ठीक है। गुस्ल खाना, अल-मिरहादु, अल-मरहादु, मर तो नहीं है इसके मेहमान, ऊपर, इसके ऊपर जबर तो नहीं है सिस्टर, मर तो नहीं है, मिर है ना, अल-मिर, मिरहादु, दू टॉयलेट, टॉयलेट, अल-मुतबाउ, मुतबा तो नहीं है, मुतबा तो नहीं है। आप कुरान मजीद भी ऐसे, मुतबाहु, कुरान मजीद भी ऐसे ही पढ़ते हैं आप लोग, जबर को जेर पेश पढ़ते जाते हैं, पता है कितना मीनिंग चेंज होता है। अल-मुतबाहु, मतबाहु, मतबाहु, किचन, अल-गुरफातु, कमरा, अल-जामियातु, क्लासरूम, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, फसल होता है ना, फसल होता है क्लासरूम, ठीक है ना, फसल। और असुकु, असुकु, मार्केट, मार्केट, अल-यबानु, जापान, याबान, जापान, अल-सैनु, सैनू नहीं है, सीनू है। अगर आप सीनू पढ़ती तो आपको मतलब भी आ जाता। चीन, चीन, अल-हिंद, इंडिया, अल-फबलेनु, फिलीपीन, फिलीपीन होता है ना, फिलीपीन इंग्लिश में फिलीपीन बोलते हैं ना, तो उर्दू में क्या बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं, फिलीपीन, फिलीपीन। अल-मदीरु, मुदीरु, 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 सॉरी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेड टीचर, कुछ भी बोल सकते हैं। ज़हाबा, अब ज़हाबा जो है इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, तनवीन भी नहीं आ रही। ये ज़हाबा क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये इस समय फेल है, हर्फ है, क्या है ये? फेल है। तीन ही चीजें होती हैं, ये सारे नाउन थे अलिफ लाम वाले। अगर तनवीन वाले आएंगे अलिफ लाम नहीं होगा, तनवीन वाले मदरसतु, मदरसतुन है ना, फसलुन, हम्मामुन, तो वो भी क्या होंगे, तनवीन वाले भी नाउन नहीं होंगे। ठीक है। और अगर अलिफ लाम आएगा तो फिर एक पेश आएगी तो वो भी नाउन ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो ये फेल है। और इसमें तीन चीजों का होना जरूरी है, एक तो फेल का होना जरूरी है, एक फाइल का होना जरूरी है। फाइल इसमें क्या है, फेल तो ज़हाब है, फाइल क्या है, हुआ है, अब होगा, हुआ, अब हुआ है। अच्छा, और उसके बाद तीसरी चीज का जमाना है। तो जमाना कौन सा है, पास्ट टेंस है, माजी है। जमाना कौन सा है, माजी, माजी हाल मुस्तकबिल है ना, तो ये आपका माजी है। खरजा क्या है, ये भी फेल है, इस पे भी अलिफ लाम तनवीन नहीं आ रहा है, इसमें भी आपका फाइल हुआ है क्योंकि आगे कोई नाम नहीं आ रहा। नाम आता तो फिर वो फाइल होता है, नाम नहीं आ रहा तो जमीर फाइल है। और फिर इसके मतलब तीसरी चीज क्या है, पास्ट टेंस है, जमाना है। ठीक है। तो जब भी फेल आएगा तीन चीजें ढूंढेंगी आप। पहले तो फेल तो वो पता ही है कि खराजा फेल है, उसको पहचानना होता है सिर्फ, ये फेल है, नाउन नहीं है, हर्फ भी नहीं है। फिर उसके बाद आप दो चीजें और ढूंढे, उसमें फाइल ढूंढे और उसका जमाना ढूंढे क्या है। अच्छा, अगर लास्ट में जबर आ जाए ना तो फिर वो क्या होता है, यहाँ पे भी जबर आ जाए, यहाँ पे भी जबर आ जाए तो वो माजी ही होता है। तीनों पे जबर आ जाए तब भी माजी होता है। ठीक है। तो इसमें आप देखें फी
फी का मीनिंग क्या होता है? वो इन, इन अला, आला, ऊपर, और ऊपर, मन, देखिए आप वो, पिछला लेसन नहीं याद करेंगे तो आपको आगे बहुत मुश्किल होगी। मिन का मतलब फ्रॉम या से, अला का मतलब अलल मक्तबी, टेबल पर, फिल गुरफती, कमरे में, मिनस्सीनी, चाइना से, इलल याबानी, इला का मतलब टू, तरफ, इला का मतलब तरफ। तो सारे मीनिंग, फी का मतलब में, अला का मतलब ऊपर, मिन से, इला तरफ। तो ये क्या हो गया? मिन हुरूफिल जर्री, ये हुरूफ जारा में से हैं। हुरूफ जारा कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन अभी इन्होंने आपको 4 पढ़ाए हैं। 4, ठीक है, होते तो ज्यादा हैं, लेकिन कुरान मजीद में 11 आते हैं, तो हम 11 ही पढ़ेंगे इन तमाम बुक्स में, क्योंकि हमारा कुरान से ही मतलब है। तो फी का मतलब इन, अला ऊपर, मिन से इला तरफ। ठीक है, चलिए बाकी सब कुछ हो गया। जिसके ऊपर पेश आए, एक पेश आए, उस नाउन को क्या कहते हैं? उसको मरफू कहते हैं। इसम को ये हम यहाँ से दोबारा पढ़ लेंगे। जिसके नीचे जेर आ जाए उसको हम मजरूर कहते हैं। हर्फ जर की वजह से उसके नीचे जेर आती है तो इसम को हम मजरूर कहते हैं। तो ये मरफू और मजरूर पेश आ जाएगी तो उसको मरफू कहेंगे, या पढ़िएगा जरूर। ठीक है, ये जो है नॉर्मल एंडिंग है। देखें, अल बैतु या अल मस्जिदु या अल किताबु क्यों होता है? क्योंकि ये नॉर्मल एंडिंग है, इसके ऊपर पीछे से कुछ नहीं आया, ये नॉर्मल एंडिंग है। जैसे ही पीछे से कुछ आ जाएगा उसकी हरकत चेंज हो जाएगी, वो नॉर्मल एंडिंग खत्म हो जाएगी। हरफ जर आएगा तो जेर लग जाएगी, इन्ना वगैरह आएगा तो जबर लग जाएगी। अभी इन्ना हमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं इन्ना का नहीं बता रही, जबर भी नहीं पढ़ी। अभी हम सिर्फ दम्मा और जेर पढ़ रहे हैं। तो इसको नॉर्मल एंडिंग कहते हैं। कुछ भी याद न रखिए, ये नॉर्मल एंडिंग है। और ये क्यों कसरा है यहाँ पे बताइए आप मुझे, कसरा क्यों आएगा? हरूफ जर लगने से। जब पीछे हर्फ जर आएगा तो लाजम चेंज होगा, नॉर्मल एंडिंग खत्म हो जाएगी। देखें, अल बैतु फिल बैती, ठीक है ना? क्यों यहाँ पे नॉर्मल एंडिंग है, यहाँ पे नॉर्मल एंडिंग नहीं है। क्यों हो गया? क्योंकि पीछे से फी आ गया। अब समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ पे बैतुन है तो पीछे से फी आएगा तो फी बैतिन होगा। ठीक है, बैतुन है, नॉर्मल एंडिंग है, ये भी नॉर्मल एंडिंग है, ये भी नॉर्मल एंडिंग है। जब दम्मा होगा तो वो नॉर्मल एंडिंग होगी, जब पीछे से कुछ आएगा तो वो उसको, अगर बैतुन होगा तो बैतिन में चेंज करेगा, बैती, फी बैती में तो चेंज नहीं करेगा ना, फी बैतिन में चेंज करेगा। अल मकतबु था, नॉर्मल एंडिंग है, यहाँ पर अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है, अला आएगा तो उसकी वजह से जेर आ जाएगी, अल मकतबी। इसको कहते हैं मजरूर, जो जेर आती है जिसके नीचे उसको मजरूर कहते हैं, और जिसके ऊपर नॉर्मल एंडिंग आती है उसको मरफू कहते हैं। यहाँ पे मरफू भी बताया हुआ था, ये नॉर्मल एंडिंग को मरफू कहते हैं। जिस नाउन पे नॉर्मल एंडिंग आएगी अगर नहीं भी याद करना तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ ये नॉर्मल एंडिंग और दूसरा पीछे से कोई आएगा तो वो उसको कसरा देगा। बाकी हमने प्रोनाउन पढ़े हिया और हुआ, और टाइम इज होने वाला खत्म। दुआ कर लेते हैं और फिर ये ऐनल वलदु। अब ऐना तो कुछ नहीं करता ना, इसलिए नॉर्मल एंडिंग आ रही है। हरफ जर आएगा तो वलदी हो जाएगा, जैसे फी आया तो मस्जिदी हो गया। यहाँ ऐना आया तो नॉर्मल एंडिंग, कोई फेल आएगा तब भी नॉर्मल एंडिंग आएगी। जैसे ही हरफ जर आएंगे तो वो जेर नॉर्मल एंडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व फिर हमने ये रहमतुल्लाह। पढ़ा था कि ये औरतों के नामों पे एक पेश आती है, मर्दों के नामों पे तनवीन आती है, इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। फिर हम इंशाल्लाह अद-दर्सुल खामिस शुरू करेंगे। पीछे सर एक सवाल करूं आपसे? हाँ जी करिए, करिए, टाइम है अभी थोड़ा सा। मुझे खाली आप ये बताएं कि मतलब आपने कहा था कि वाव अगर दरमियान में आ जाए हरूफ है तो उसका जो इस तरह होगा कि मतलब जो पहले अगर तनवीन होगी लास्ट हर्फ के ऊपर तो उस पे भी होगी, मतलब जो सेकंड होगा, वाव जो के बाद होगा। आ रहा है। समझ तो लीजिए उसके ये मिरर है, मिरर समझती है ना, शीशा हाँ हाँ है, जी जो इधर होगा वो इधर होगा। जी जी वही मैं आपसे कहना चाह रही कि मतलब कुरान में तो कई मतलब जगह पे ऐसा नहीं है, कहीं पे जेर है तो कहीं पे जबर है वो मैं वाव के बताती बाद। हूँ ना, मैं बताती हूँ ना, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वल असरी, ठीक है, अब जी यहाँ जी पे जी जेर आ रही है, लेकिन जी जी यहाँ पे वाव का मीनिंग चेंज हो गया ना। आपको पता है अच्छा वाव का मीनिंग क्या है? यहाँ पे कसम है वो- जमाने की, जी जी यहाँ पे एंड का मीनिंग नहीं आ रहा।
اچھا مطلب یعنی جہاں پہ اینڈ کی میننگ سے واو آئے گا وہاں پہ سیم مطلب سیم ہوگا ٹھیک ہے. ٹرانسفر ہوگی ٹھیک ہے جہاں پہ ہم لوگ قسم کا ہوگا وہاں پہ وہ چینج ہوگا وہاں پہ ایسے؟ زیر آئے گی کیونکہ یہاں پہ یہ حرف جر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. میں آپ کو حرف صحیح. جر 11 بتاؤں گی اس میں وہ بھی آتا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے جب قسم کا معنی دے گا تو وہ حرف جر ہوگا وہ زیر دے گا. جب صحیح. وہ اینڈ کے معنی میں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. دیکھیں ٹھیک ہے. واللہ عربی لوگ بولتے ہیں نا واللہ جی واللہ تو وہ کیوں جی بولتے جی ہیں؟ جی وہ جی قسم کے جی لیے بول رہے ہوتے ہیں قسم ہے اللہ کی تو صحیح وہ زیر صحیح لگاتے ہیں. وہ کا معنی یہاں پہ اینڈ نہیں ہے اور اللہ نہیں ہے. اگر وہ کا معنی اینڈ ہوگا تو واللہ ہوگا صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک اس ہے. وقت وہ اور کا معنی دے رہا ہے نا تو اللہ ہوگا. جب وہ قسم کا معنی دے گا تو زیر ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی بات. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ ان سب چیزوں کو نوٹ بھی کیا کریں. ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جزاک اللہ حافظ. اچھا رمضان میں رکھیے گا دعاؤں میں یاد اور آپ لوگ سب میری دعاؤں میں انشاءاللہ 12 بجے آپ کی کلاس ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ آپ استاد. کے 12 بجے اور میرے صبح کے 6 بجے. اوکے